আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি কোরআন কারীমের মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা, হে ঈমানদার বান্দা বান্দীরা, তোমরা কি করো? তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করার পরে তোমরা কি বলো? তোমরা যখন কথা বলবে তখন সত্য কথা বলবে। তোমরা সত্যের উপরে সত্য কথা বলবে, মিথ্যার ধার ধারবে না, মিথ্যা কথা বলবে না। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সত্য যদি আমরা বলি, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সত্য কথা বলতে বলেছেন, সুতরাং আমরা সদা সর্বদা সত্য কথা বলবো। সত্যের উপরে আমরা যেন অভ্যস্ত হতে পারি, আমরা যেন জিহ্বার হেফাজত করতে পারি। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। এখান থেকে আমি আমার বক্তব্য ইতি করছি। পরিশেষে দোয়া করব, হে রব্বুল আলামিন, আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, জাহান্নামের কীটে পরিণত যেন না হয়, এই জন্য যেন আমরা সত্য কথা বলি, জিহ্বার আমরা হেফাজত করতে পারি, আমরা লজ্জাস্থানে যেন হেফাজত করতে পারি। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকুমুল্লাহু খায়র ওয়া হাসানাল জাযা। এতক্ষণ ধরে আপনারা বক্তব্য শুনছিলেন ফজিলাতুল শাইখ কারি মুহাম্মদ জার্জি সালামের সাহেবের মুখ থেকে। এটা সত্যি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালিয়াকুল খায়রান আও লিয়াসমুত আও লিয়াসকুত। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং কিয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস করেন, তারা যেন যে কোনো কথা বলে, যেন সঠিক কথা বলে। যদি কথা না বলতে পারে তাহলে সে চুপ থাকবে, সঠিক কথা না বলতে পারলে। এই জন্য আমাদের সকলের কর্তব্য, সকলের আমাদের প্রতি জরুরি যে আমরা যেন আমাদের মুখ দিয়ে কি কথা বলছি, কিরকম ব্যবহার করে কথাটা বলছি, কিরকম আওয়াজে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে, সেই জিনিসের দিকে আমরা যেন ধ্যান দিই। এবারে আমি ডেকে নিব এই মঞ্চের তৃতীয় বক্তা ফজিলাতুল শাইখ মুজিবুর রহমান চতুর্বেদী সাহেবকে, যিনি আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন। তরুণ বক্তা, যুবক বক্তা ফজিলাতুল শাইখ মুজিবুর রহমান চতুর্বেদী সাহেবকে এখন আমি মঞ্চে ডেকে নেব। অতএব সকল গ্রামবাসীর কাছে আবার আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা এদিকে ওদিকে বসে না থেকে খুব শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি প্যান্ডেলের মধ্যে আসার চেষ্টা করুন। আমাদের সামনে বক্তব্য প্রদান করবেন ফজিলাতুল শাইখ মুজিবুর রহমান চতুর্বেদী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने हमें को कहेगी दुनिया कातिल हमारा ही कत्लेआम होगा हमें को ये खोदते फिरेंगे हमें पे पानी हराम होगा ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है ओ सोने से कंकर ओ चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने ए दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है सितारों से ये चाँद कहता है हर दम तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दी चाहता है। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों और इस इजलास में शरीक हुई हमारी माओ बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी
आज जिस टॉपिक पर तकरीर करना चाहता हूँ, कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ, वह है कि हम पर अल्लाह का अजाब क्यों आता है। आपने हाल ही में देखा सुना कि एक मुल्क आता है अमेरिका, जिसके पास कोई हथियार की कमी नहीं, जिसके पास ताकत की कमी नहीं, और उसी मुल्क में एक रियासत आती है कैलिफोर्निया। एक स्टेट आता है, एक राज पड़ता है जिसको कैलिफोर्निया कहा जाता है, और उसी रियासत में एक बहुत बड़ा शहर है लॉस एंजेलिस, जहां पर आग लगी और उस आग ने हजारों इमारतें बर्बाद कर दी, कितने घरों को उजाड़ दी, कितने घरों को जलाकर राख कर दिए। तो हमें और आपको सोचने की बात यह है कि यह अल्लाह का अजाब है या नहीं। इसी चीज को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी, लोगों जब तुम्हें जमीन पे बिगाड़ नजर आए, जमीन में जब देखो कि तुम्हें बिगाड़ नजर आ रहा है, खुशकी में तरी में कोई फसाद नजर आ रहा है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये इंसान के हाथों की कमाई है, ये गुनाहों का नतीजा है, ये गुनाहों की सजा है जो अल्लाह तुम्हें रुए जमीन में दे रहा है। मेरे भाइयों, हमने दुनिया में जुल्म किया, हमने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, हमने रसूलों के पैगामात को झुटलाया, हमने बड़ों का एहतराम नहीं किया, हमने चोरी की, हमने डकैती की। दुनिया में जब गुनाह हो जाए, लोग शराब पीने लगे, शराब के अड्डे खोले जाए, जिना के अड्डे सजाए जाए, अल्लाह कहता है जब मुसीबत नजर आए, जब अल्लाह का अजाब तुम पर हो, ये समझो बिमा कसबत ऐदिन नास, है लोगों, ये इंसान के हाथों की कमाई है। इंसान ने उस गुनाह के बदौलत उस अजाब को खरीद लिया है, उस मुसीबत को खरीद लिया है। अल्लाह कहता है लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, है लोगों, अल्लाह तुम्हें बाज़ गुनाहों की सजा दे रहा है, बाज़ गुनाहों के बदले तुम्हें अजाब दे रहा है। तुम्हारे सामने मुसीबतें आ रही है, तुम्हारे सामने परेशानी आती है, इसलिए कि लअल्लहुम यरजिऊन, लोग उस गुनाह को छोड़ दो, लोग उस गुनाह से पास आ जाएं, लोग उस गुनाह को छोड़कर अल्लाह के सही रास्ते पे आ जाएं और गुनाह करना छोड़ दे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब देखो रोए जमीन पे अजाब आए, अल्लाह का हम पर अजाब आए, कहीं मुसीबत आए, परेशानी आए, वायरस फैल जाए, कोरोना वायरस फैल जाए, या दुनिया में महामारी जैसे कितने ऐसी बीमारियां हैं जो फैल जाए, तो इंसान को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हमने कोई गुनाह किया है और इसी गुनाह के बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अज़ाब देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें और आपको अज़ाब देगा, जहन्नम में जलाएगा ही, लेकिन अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें दुनिया में हल्की फुल्की सजाएं देंगे, दुनिया में भी तुम्हें हम हल्का मजा चखाएंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, ऐ लोगों, हम तुम्हें हल्का अज़ाब दुनिया में देंगे, हम तुम्हें हल्की सी सजा दुनिया में देंगे, दुनिया में तुम उसका मजा चखो। दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब के मुकाबले में, दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब के मुकाबले में हम तुम्हें दुनिया में हल्का फुल्का अजाब देंगे, दुनिया में हम तुम्हें छोटा अजाब देंगे। मेरे भाइयों, जहन्नम में इंसान को आग में जलाई जाएंगे, इंसान आग में जलेगा, आग लगाई जाएगी,
जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, पेट्रोल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, जलेगी तो इंसान से जलेगी, जलेगी तो पत्थरों से जलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, जहन्नम में जो अजाब हमें अल्लाह देगा ही, लेकिन इस दुनिया में भी कुछ अजाब अल्लाह दे रहा है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब के मुकाबले में हम तुम्हें दुनिया में हल्का अजाब देंगे। बड़े अजाब के मुकाबले में हम तुम्हें दुनिया में हल्का अजाब देंगे। अमेरिका में आग लगी, ये अल्लाह का अजाब है या नहीं? आप इस बात से समझ लीजिए कि अमेरिका के पास ताकत की कमी नहीं है, सामान की कमी नहीं है, आलात की कमी नहीं है, उनके पास मशीन की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कुदरत का अजाब आया तो इस शक्ल में आया कि पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया रियासत का सबसे बड़ा शहर है और अमेरिका का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। मेरे भाइयों, जंगलों में पहले आग लगी, धीरे धीरे शहरों को अपने चपेट में ले लिया, और जब शहरों में आग लगी तो फिर पूरा शहर बर्बाद हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का अजाब आता है, कहीं पर सैलाब आ गया, कहीं मुसीबत आ गई, वायरस फैल गया, तो ये अजाब सब पर क्यों आता है? एक बस्ती में, एक शहर में कितने अच्छे लोग भी हैं और कितने लोग बुरे भी हैं, कोई खराब है कोई अच्छा है, लेकिन अल्लाह का जब अजाब आता है वायरस की शक्ल में, आग की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, आंधी की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, तो सब पर क्यों आता है? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जवाब देता है, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐ लोगों तुम उस फितने से डरो, तुम उस अजाब से डरो जो अजाब आएगा तो सबके घरों में आएगा, खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा कि हाँ कौन नमाजी है, कौन बेनमाजी है, कौन मंडल है, कौन हाकिम है, कौन सरदार है, गांव में कौन मुखिया है, कौन एमएलए है, कौन एमपी है। अल्लाह कहता है जब वो फितना आएगा, वो आजमाइश आएगी, वो अजाब आएगा, तो खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा, आएगा तो पूरे बस्ती में आएगा, आएगा तो पूरे शहर में आएगा, आएगा तो पूरे इलाके में आएगा और पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उस फितने से डरने को कहा गया, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐ लोगों अल्लाह के उस अजाब से डरो, अल्लाह के उस फितने से डरो जो आएगा तो खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो खास खास लोगों के घर में नहीं आएगा, पहचान करके नहीं आएगा। अल्लाह का अजाब आएगा तो नहीं देखेगा कि कौन मुत्तकी है, कौन अल्लाह को दिल दे बैठे हुए हैं, कौन अल्लाह से दिल लगाए बैठे हैं, कौन मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह करता है, कौन अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। अल्लाह कहता है जब वो अजाब आएगा तो पूरे बस्ती में आएगा। अब सवाल एक और पैदा होता है कि अल्लाह गुनहगार को बर्बाद करेगा, गुनहगार कौम को तबाह करेगा, उसका नामो निशाना मिटाएगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जिसकी कोई गलती नहीं, जिसके कोई गुनाह नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्यों बर्बाद करेगा? इसकी एक मिसाल लीजिए, हदीस में है कि 2 मंजिला कश्ती है, 2 मंजिला कश्ती है, नाव है, कुछ लोग ऊपर मंजिल में हैं, कुछ लोग नीचे मंजिल में हैं। अब नीचे मंजिल पे जो लोग हैं, नीचे फ्लोर पे जो लोग हैं, वो ऊपर बार बार जाएंगे सामान लाने के लिए, ऊपर मंजिल में जाएंगे तो ऊपर वाले लोगों को डिस्टर्ब होगा, परेशानी होगी।
अब नीचे वाले अगर ये सोच ले, ये समझ ले कि हम कश्ती का एक तख्ता हटा देंगे, कुछ हिस्सा हम सुराख कर देंगे, कुछ हिस्सा हटा देंगे, नीचे से ही हम पानी ले लेंगे, तो मेरे भाइयों गौर करने वाली बात है कि अगर नीचे कश्ती का सुराख कर दिया जाए, नीचे से तख्ता हटा दिया जाए, तो पानी जब नीचे से आएगा तो ऊपर वाले भी डूब जाएंगे, नीचे वाले भी डूब जाएंगे। हालांकि गलती नीचे वालों की है, ऊपर वाले तो ऊपर में है, उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन कश्ती जब डूबेगी तो नीचे मंजिल को लेकर डूबेगी और ऊपर में जितने लोग हैं दूसरे मंजिल पे उन लोगों को भी लेकर डूबेगी। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई गलती करे आप उसको रोकिए, अगर दूसरे मंजिल वाले जो नीचे मंजिल पे उन लोगों को ना रोके तो हाल जिस तरह नीचे वालों का होगा ऊपर वालों का भी होगा। इसलिए जरूरी है कि कोई अगर गुनाह करे हमसे जहां तक हो सके हम उसे रोकें। मेरे भाइयों, अमेरिका में आग लगी, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए एक अहम पैगाम है कि अल्लाह का जब अज़ाब आता है तो सबको अपने चपेट में लेता है, सबको बर्बाद करके रख देता है। मेरे भाइयों, ये हल्का अज़ाब नहीं था, ये हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए सबक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कैसे बर्बाद किया, उसकी गलतियां क्या थी। लॉस एंजलिस शहर में आग लगी। मेरे भाइयों, रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है वहां पर बुराइयां इतनी आम है, इतनी आम है, एक यूनिवर्सिटी को जब खंगाला गया वहां पर 75% लड़कियां इस तरह है जो बिना शादी के, बिना निकाह के, बिना विवाह के पहले ही बच्चा हो जाता है। ज़िनाकारी आम है और वहाँ की नदी नाले में जो किनारे होते हैं, साहिल होते हैं, वहाँ पर लोग नंगा घूम रहे हैं, वहाँ पर लोग नंगा जिंदगी गुजार रहे हैं, रंगीनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ कहा जाता है। कितने सितारे मौजूद है, हॉलीवुड के अड्डे वहाँ है, वहाँ पर गुनाहों के बाजार गर्म है, वहाँ पर लकाज़ब ना है तो और क्या है। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा फिलिस्तीन के अंदर और उस गाजा के मुसलमानों को बेरहमी से मारा गया, उस गाजा के अंदर मुसलमानों को इतना मारा गया कि उनको भूख की जिंदगी देखनी पड़ी। मेरे भाइयों, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हालात देखिए, उनकी वीडियो जब सामने आते तो अल्लाह कह रहा हूँ आंखें नम आपकी भी हो जाएंगी, आंखें नम हो जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है। छोटा छोटा बच्चा है लेकिन पानी कीचड़ से उठाता है, साफ करता है, उसी को पीता है। ये कौन हमला कर रहा है? इजरायली सरकार। लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला, उसका साथ देने वाला, उसको हौसला देने वाला ये अमेरिका की सरकार है, ये अमेरिका मुल्क है जो बढ़ावा देता है इजरायली सरकार को। क्या नेतन्याहू गाजा के अंदर उस मुसलमानों को मारो, वहाँ के मुसलमानों को गोलियों से भून दो। मेरे भाइयों, वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब होना है तो और क्या है। अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, मेरे भाइयों, उन्होंने कहा था 20 जनवरी आने से पहले जितने भी मुसलमानों के ममालिक हैं, जितने भी अरब ममालिक हैं, सबको जहन्नम बना दूंगा, सबको नर्क बना दूंगा। लोग इसी दुनिया में जहन्नम की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह का अज़ाब इस तरह आया, अल्लाह की पकड़ इस तरह आई, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ तो बहुत सख्त है, तेरे रब की पकड़ तो बहुत सख्त है। अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह की पकड़ हुई। 20 जनवरी से पहले उनका एक शहर लॉस एंजलिस जो सबसे बड़ा शहर, अल्लाह ने उसको जला दिया, अल्लाह ने उसको राख कर दिया, अल्लाह ने उस बस्ती को उजाड़ दिया, अल्लाह ने उस शहर को बर्बाद कर दिया। जो ये कहा करते थे कि हम इसको जहन्नम बना देंगे, अल्लाह ने उसको एक शहर को जहन्नम बना दिया और उनकी मशीनें फेल हो गए, लोग बेबस हो गए, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो किसी की नहीं चलती। मेरे भाइयों, एक आदमी का घर जला जो फिल्म इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में काम कर रहे थे। उनका नाम भी बता दूं, जेम्स सूट उनका नाम है। इन्होंने ट्वीट करते कहा था
नेतन्याहू को कहा था, इजराइल के सरकार को कहा था कि नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस। गाजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, गाजा के लोग मारे जा रहे हैं, गाजा के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोग भूख से परेशान है, खाना नहीं मिल रहा है। ऐ नेतन्याहू, नो सीज फायर, कोई युद्ध विराम नहीं, जंग जारी रहने दो, जंग चलने दो, जारी है, जारी रहने दो। वहां के मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं, वहां के लोगों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, माफी नहीं, मारो जितना मारना है मारो, उड़ा दो मुसलमानों का नामो निशाना मिटा दो। लेकिन अल्लाह का जब अज़ाब आया, आग लगी, तो उस जेम्स सूट का भी घर जल गया। मेरे भाइयों, जब खुद का घर जला तो टीवी पे आके रो रहा है। खुद का जब घर जला, जेम्स सूट नाम है उनका, तो टीवी पे आके रो रहा है कि हाय रे मेरी बर्बादी, हाय रे मेरी बर्बादी, मेरा घर जल गया। लेकिन कहने वाला वही था कि गाजा के अंदर जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, कोई समझौता नहीं, कोई सुलह नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, मारो और मारो। ऐ नेतन्याहू, शाबाश, जंग जारी रखो, वहां के लोगों को और मारो। तो मेरे भाइयों, उस मुल्क में अल्लाह का अज़ाब लाए तो और क्या है। मैं आपको बता दूं, कुरान पढ़िए, कुरान में कितने ऐसी कौम का जिक्र कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, और कह रहा है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। ऐ नबी, क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने कौमियात के साथ कैसा सलूक किया। कौमियात एक बहुत बड़ी ताकतवर कौम थी, शक्तिशाली कौम थी। इनके पास इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि ये पहाड़ों को काट कर, चट्टानों को काट कर, पत्थरों को काट कर तराशते थे और अपनी रिहाइश घर बना लिया करते थे। वो लोग अपना घर बना लिया करते थे, पहाड़ों को काट काट कर उसी में अपना बसेरा करते थे, उसी में अपना घर बना लिया करते थे। कौमियात के बारे में अल्लाह कहता है, पढ़िए 30वें पारे खोलिए, सूरह फजर पढ़िए। अल्लाह फरमाता है वल फज्र व लयालिन अश्र। इसी सूरह में अल्लाह कहता है अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। ऐ लोगों, कौमियात एक ऐसी कौम थी दुनिया में उसके मानिंद कोई कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा ही नहीं की है, उसके बराबर कोई कौम आई ही नहीं है। कौमियात के पास इस तरह ताकत थी, उसके पास इस तरह ताकत थी कि अल्लाह ने उस जैसी कौम दुनिया में कोई पैदा नहीं की है। और कौम समूद के बारे में कहता है वसमुदल्लज़ीना जाबुस सखरा बिल वाद। और कौम समूद को देखिए, ये भी पहाड़ों को काट कर, पत्थरों को काट कर, चट्टानों को काट काट करके अपना घर बना लिया करते थे। शहरों में, वादियों में अपना घर बनाया करते थे, पहाड़ों को काट कर। लेकिन इसने जब अल्लाह की नाफरमानी की, जमीन में जुल्म किया, लोगों को परेशान किया, तो अल्लाह ने उसको अपने अज़ाब में गिरफ्त कर लिया। अल्लाह ने उसको पकड़ लिया और ऐसा जकड़ा, ऐसा पकड़ा कि अल्लाह ने उसका नाम और निशाना मिटा दिया। अल्लाह ने उसका नाम और निशाना मिटा दिया। ये लोग कौन थे? कौमियात और कौम समूद कौन कौम थी? वो लोग कहा करते थे वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कौन ताकतवर है। जिस तरह अमेरिका भी दावा कर रहा है हमसे ज्यादा ताकतवर देश कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर मुल्क कौन है। हाँ, हकीकत में पावर अमेरिका के पास है, लेकिन अल्लाह के आगे इनकी कोई औकात नहीं है, अल्लाह के आगे इनकी कोई ताकत नहीं है। यही अमेरिका है, इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला किया, गाजा के अंदर उस शहर का नक्शा बदल दिया, कितने लोगों को परेशान किया। लेकिन अल्लाह कहता है लोगों, चाहे तुम्हारे पास ताकत कितनी हो, सबको मेरे पास आना है, सबको मेरे पास आना है। मेरे भाइयों, कौमियात के पास भी बहुत ताकत थी, कौम समूद के पास भी बहुत ताकत थी, और कहा करते थे वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, लोगों हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह की नाफरमानी, रसूल को झुठलाया, जब दुनिया में उनकी सरकशी ज्यादा हो गए, अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, रुए जमीन में, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, रुए जमीन में सरकशी की,
फसाद मचाया, बहुत फसाद मचाया, तो अल्लाह ने इस कौम को हलाक कर दिया। कैसे किया? कुरान पढ़िए, उसी सूरत में अल्लाह कहता है फअम्मा समूद फउहलिकु बित्तागिया। कौम समूद को अल्लाह ने कैसे बर्बाद किया? एक तेज आवाज आई, कौम समूद के लोगों के कानों का पर्दा फट गया। इतने जोर से आवाज आई, तेज आवाज आई, जोरदार आवाज आई, कौम समूद के लोगों के कानों पर वो आवाज पड़ी। तो कानों पर जब आवाज पड़ी तो उनके कान के पर्दे फट गए, वो लोग बर्बाद हो गए। और कौम आग का जिक्र अल्लाह कर रहा है, वह अम्मा आदुन फउहलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया। ऐ लोगों, कौम आग का हाल देखो, कौम आग का हाल देखो, कैसे अल्लाह ने बर्बाद किया। तेज तुंद हवा चली, तूफान आया, इतनी जोर से हवा चली, अमेरिका के अंदर आग लगी। वजह बता रहे कि सेंट आयना के जरिए से, सेंट आयना की वजह से हवा चली 160 किलोमीटर प्रति घंटा और आग को फैलाने में मदद की। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का अजाब आता है तो हवा की शक्ल में भी आता है, हवा अजाब बनकर आती है। कौम आद को अल्लाह ने बर्बाद किस तरह किया, हलाक कैसे किया? सखरा अलैहिम सबआ लयाली, तेज उतुन हवा चली, तेज रफ्तार से हवा चली, सबआ लयालिन, 7 रात तक चली। एक आध घंटा नहीं, अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और हवा चलने लगे, 10 से 15 मिनट अगर हवा चले तो हमें डर होता है कि कहीं ये शहर बर्बाद ना हो, हमें डर है कि हमारा मकान उड़ ना जाए, हमें डर है कि हम जमीन पे ना धंस जाएं। मेरे भाइयों, जब अजाब आया अल्लाह का तो किस शक्ल में आया? सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन व समानियत अय्यामिन, 7 रात तक वो हवा चली और 8 दिन तक चली। फिर कुरान के आखिरी जुमले में अल्लाह कहता है, आखिरी लफ्ज में अल्लाह कहता है, हुसूमन, मुसलसल चली, बेदर पे चली, लगातार चली, कंटिन्यू चली। सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, मुसलसल हवा चली 7 रात और 8 दिन तक। अब बताइए, तेज हवा अगर 7 रात 8 दिन तक चले, मुसलसल चले, तो उस कौम का हाल क्या होगा? कुरान कहता है वो कौम इस तरह बर्बाद हो गए, वो कौम इस तरह हलाक हो गए, वो कौम इस तरह हलाक हो गए कअन्नहुम अजाज़ मिन नख़लिन खाविया, जिस तरह खजूर के सड़े तने पड़े हो, लग नहीं रहा है कि वहां पे कोई दरख्त था, सड़कर गलकर मिल जाए और नीचे ढेर जमा हो जाए। हवा जब चली, कौम याद इस तरह बर्बाद हो गए तो उनका सर अलग, उनका धड़ अलग, उनके तन अलग और वो ऐसे जमीन पे पड़े रह गए। मेरे भाइयों, फिर कहता अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ नबी देखो, फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, रुए जमीन के अंदर कौम याद का आदमी मिल रहा है? नहीं, एक भी आदमी को अल्लाह ने जमीन पे नहीं छोड़ा है, एक भी आदमी दुनिया में नहीं बचा है। कौम याद के जितने भी लोग थे, फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, कोई जमीन पे तुम्हें नजर नहीं आएगा। अल्लाह कहता, रुए जमीन पे जुल्म ज्यादा होने लगे, रुए जमीन पे अत्याचार ज्यादा करने लगो, पुनः जब करने लगो, अल्लाह उस कौम को बर्बाद करके दूसरी नई नस्लें लेके आएंगे, नई कौम लेके आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जिस कौम को अपने ऊपर नाज है, जिस कौम को अपने ऊपर नाज है, अपनी ताकत पर नाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कब हलाक कर देगा, कब बर्बाद कर देगा, हम और आप कह नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम याद को इस तरह बर्बाद कर दिया। फिरौन ने भी बहुत बड़ा जुल्म किया। फिरौन इतना बड़ा जालिम बादशाह था कि छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था, औरतों को बांधिए और गुलाम बना लेते थे और मूसा का मजाक बनाते थे। ऐ मूसा, तुम अल्लाह का रसूल कैसे हो सकते हो? ऐ मूसा, तुम अल्लाह के नबी कैसे हो सकते हो? जबकि तुम्हारी जबान में भी तोतलापन है, तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है, तुम्हारी जबान में लड़खड़ाहट है, तुम बोलते सही नहीं हो, तुम्हारी जबान में नुकरत पाई जा रही है। मेरे भाइयों, उलमा लिखते हैं, मूसा एक ऐसे नबी थे, मूसा एक ऐसे रसूल थे जो बचपन में छोटे में एक्सीडेंट हो गए थे, किसी हादसा के शिकार हो गए थे और उनकी जबान चल गई थी, सही से बोल नहीं
नहीं पा रहे थे तो उनका मजाक फिरौन कर रहे थे, उनका मजाक फिरौन बना रहे थे। जब मूसा कहता है फिरौन ऊपर में अल्लाह है, अल्लाह तो हमारी ऊपर है, तुम अल्लाह नहीं, तुम मालिक नहीं, तुम बादशाह नहीं, फिरौन मजाक बनाया करता था और कहता है मेरे लश्करों ऊंचे ऊंचे मकान बनाओ, ऊंची ऊंची इमारतें बनाओ, लंबी सीढ़ी बनाओ, हम ऊंचे मकान पे चढ़ जाएंगे, ऊंचे महल पे चढ़ जाएंगे और देखेंगे कि मूसा का रब कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, मूसा का रब कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अगर कोई 10 मंजिला 50 मंजिला बिल्डिंग बना ले और ऊपर चढ़ के अल्लाह को देखे तो देखना क्या देख सकता है। मूसा ने इस तरह भी मजाक बनाया, ऊंचे महल तैयार करवाए और ऊपर चढ़ के देखा कि अल्लाह अल्लाह कोई नहीं है, नीचे वापस आ गया। तो मेरे भाइयों इस तरह जालिम बात अल्लाह ने हुक्म दिया है मूसा अपनी कौम बनी इस्राइल को लेकर निकल जाओ, अपनी कौम बनी इस्राइल को लेकर निकल जाओ। मूसा अपनी कौम को लेकर निकल रहे हैं। फिरौन को जब पता चला कि मूसा अपनी कौम के साथ निकल गए हैं, फिरौन ने मूसा का पीछा किया, फिरौनियों ने मूसा और उसकी कौम का पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम आगे आगे जा रहे हैं, देखा कि दरियाए समंदर है। मूसा की कौम बनी इस्राइल कहते हैं मूसा आगे दरिया है, दाएं रास्ता नहीं बाएं रास्ता नहीं, आगे दरिया है और पीछे मेरा दुश्मन जालिम बादशाह फिरौन है और उसका लश्कर है। अब तो हम पकड़े गए, जाए तो किधर जाए, आगे रास्ता नहीं दरिया है, आगे पानी ही पानी है, ठाटे बार बार हुआ पानी है, समंदर है, दाएं बाएं रास्ता नहीं, पीछे तो फिरौन है। अरे मूसा हम तो पकड़े गए। मूसा कहता है आए बनी इस्राइल, आए मेरी कौम के लोगों, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुरान कहता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो परेशान ना हो जाओ, अल्लाह हमारे साथ है, गम न करो परेशान ना हो जाओ, अल्लाह हमारे साथ। मूसा कहता है मेरी कौम गम न करो परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमें अकेला कैसे छोड़ सकता है। अल्लाह ने हुक्म दिया है मूसा अपनी लाठी को समंदर पे मारो, अपनी लाठी को पानी में मारो, अपनी लाठी को दरिया में मारो। जैसे मूसा ने अपनी लाठी को समंदर में मारा, पानी के 2 टुकड़े हो गए, पानी के 2 टुकड़े हो गए और बीच में रास्ता निकल गया। मूसा और उसकी कौम उस रास्ते से पार होने लगे। जब पार हो गए एक तरफ आ गए, फिरौन और उसका लश्कर उसी रास्ते से आ रहे हैं क्योंकि पीछा करना है मूसा और उसकी कौम का। जब नदी में आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी के दोनों हिस्सों, पानी के दोनों टुकड़ों अब मिल जाओ। जरूरत थी मूसा और उसकी कौम को पार करना, फिरौन और उसके लश्करों को पार करना नहीं। फिरौन और उसके लश्कर जब गए उस रास्ते में तो अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को, और पानी 2 टुकड़ों में, पानी 2 टुकड़ा था मिल गया। तो मेरे भाइयों मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ भरोसा किया तो अल्लाह पर किया, गम नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। हम और आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम और आप गमज़दा हो जाते हैं, हम और आप मायूस हो जाते हैं कि हमें देश से कब निकाल दिया जाए। हम और आप परेशान हो जाते हैं कि हमें मोदी और अमित शाह जिस तरह इस तरह जो राजनीतिक दलों में अभी है, हमें कब मुल्क से निकाल देगा। मेरे भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है। उक़बा बिन नाफे को याद कीजिए, अपने लश्करों के साथ निकल रहे थे, आगे दरिया है समंदर है, इस्लाम का परचम लहराते लहराते, इस्लाम का परचम, इस्लाम का नाम रोशन करते करते, अल्लाह का नाम लेते लेते जा रहे हैं। उक़बा बिन नाफे अपने लश्करों के साथ आगे देख रहे हैं, बहुत बड़ा समंदर है, दरिया है, बहुत बड़ी नदी है। उनके लश्कर कह रहे कब क्या किया जाए। उक़बा बिन नाफे ने कहा ऐ मेरे लश्करों क्या देख रहे हो, अपने घोड़े को दौड़ा दो समंदर में, डाल दो घोड़े को समंदर में, हम घोड़ा समंदर में डाल देंगे और चलते रहेंगे और इस्लाम का नाम बुलंद करते जाएंगे। घोड़े को समंदर में डाल दिए और अल्लाह की तरफ दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मुखातब होकर एक तारीखी जुमला उक़बा बिन नाफे कहते हैं कि अल्लाह अगर मेरी राह में बीच में समंदर हाइल ना होता, बीच में समंदर ना आ जाता, तो मैं दुनिया में हर कोने में, हर खित्ते में, हर कोसे में मैं तेरा नाम बुलंद करता जाता, मैं तेरा नाम लेता
देता जाता, मैं तेरा नाम पढ़ता जाता, मैं तेरा नाम दुनिया के हर कोने में फैला देता। मेरे भाइयों, ये तारीखी जुमला शायर मशहूर अल्लामा इकबाल ने जब पढ़ा तो अपने शेर में नकल किया, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे भाइयों, नौजवानों, हौसला रखिए, अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए, अपने अंदर बुज़दिली खत्म कर दीजिए और होश के नाखून लीजिए। कोई हमें इस मुल्क से नहीं निकाल पाएगा। दुनिया हम ही को कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मेरे भाइयों, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई हमें इस मुल्क से नहीं निकाल सकता है। मूसा ने जिस तरह रब पर भरोसा किया, हमें और आपको भी रब पर भरोसा करना चाहिए। कोई भी जालिम कौम, कोई भी जालिम बादशाह इस दुनिया में आए हैं, जुल्म करने वाले जालिम बादशाह आए हैं, अल्लाह ने उसका नामो निशाना मिटा दिया, अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया, अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, अमेरिका को अपनी ताकत पर नाज है, अमेरिका को अपनी ताकत पर नाज है, लेकिन ईश्वर के अज़ाब के मुकाबले में घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ये कहने लगे पानी भी खत्म हो गया। ये कुदरती आफात है, ये कुदरती आज़ाब है जो ईश्वर की तरफ से है। मेरे भाइयों, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह और अजान की सदाएं बुलंद होने लगी और कहने लगा कि अजान दी जाए। तो मेरे भाइयों, वो वक्त करीब आएगा कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरेगा। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कज़बत अयदिन नास। ऐ लोगों, रूए जमीन में अल्लाह का अजाब नजर आए, रूए जमीन में परेशानियां आए, मुसीबत आए, बिमा कज़बत अयदिन नास, ये लोगों की कमाई है, लोगों के हाथों की कमाई है। दुनिया में इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अगर तौबा नहीं करता है, गुनाह करने के बाद अगर बाज नहीं आता है, अल्लाह कहता है कि हम उन्हें दुनिया में हल्का अजाब देंगे। मेरे भाइयों, इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतीअतन, जब बंदा कोई गुनाह करता है, जब इंसान कोई गुनाह करता है, अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है, उस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है, तो मेरे भाइयों, उसके दिल में सिया नुक्ता जो पड़ता है, गुनाह करने के बाद एक सिया नुक्ता पड़ता है, और गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है, वो सिया नुक्ता धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है। फिर उस इंसान को फर्क नहीं आता कि कौन गुनाह है, कौन गुनाह के रास्ते है, क्या गुनाह है। गुनाह से कोई मतलब ही नहीं, नमाज और बेनमाजी से कोई मतलब ही नहीं, वो फर्क नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, अगर तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो नुक्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता, बार बार उसी गुनाह को करता है, तो अल्लाह कहता है हम उसको एक दिन अपने पकड़ में जरूर लेंगे, हम उसको अपने अजाब में गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया में अगर हमने किसी पर जुल्म किया है, दुनिया में अगर हमने अपनी ताकत पर नाज किया है, किसी को परेशान किया है, तो आज वक्त है तौबा करने का, आज वक्त है तौबा करने का और रूठे हुए रब को मनाने का। क्योंकि वो वक्त जब आ जाएगा, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तुलू होगा, तो अल्लाह ताला हमारी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। फिरौन जब मर रहा था, उस रास्ते पे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी के दोनों पटों मिल जाओ। फिरौन जब डूबने लगे, मरने लगे, फिरौन जब डूबने लगे, मरने लगे, तो कहने लगे क्या मूसा, तू ही सही है, तेरा रब सही है, हकीकत में तू सही बोल रहा था। आय अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान ले आता हूँ। आय मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान रखता हूँ। अल्लाह कहता है फिरौन, नहीं नहीं, ये वक्त ईमान लाने का नहीं, ये वक्त तौबा करने का नहीं, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हारी मौत करीब है। अब तुम अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, करीब देख रहे हो। ये वक्त तुम्हारी तौबा का नहीं, ये वक्त तुम्हारी माफी मांगने का नहीं, ये वक्त तुम्हारा ईमान लाने का नहीं। तुम मर जाओगे, लेकिन लिमन खल्फक आया, हम पूरे जमीन पे जितने लोग आएंगे, आने वाली नस्लों के लिए तेरी लाश को हम निशान इबरत बना देंगे, तेरी लाश को हम निशानी बना देंगे। आने वाले लोग जितने आएंगे, तेरी लाश को देख के इबरत हासिल करेंगे। आज भी फिरौन की लाश है। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, उस वक्त फिरौन ने तौबा की, अल्लाह पर
पर ईमान लाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उसको ईमान लाने से दूर रख दिया। इसलिए वक्त है कि अभी से हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और तौबा करें। गुनाहों से वो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से वो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, जब भी कोई कौम ने जुल्म किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर अज़ाब भेजा। इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब रूए ज़मीन पर नाफरमानी की, नबी अकरम को झुटलाया, नूह को झुटलाया, लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया। लूत की कौम की बात कर रहा हूं। जब लूत को झुटलाया और एक गंदी हरकतें की, इग़लामबाज़ी की, जो रूए ज़मीन के अंदर किसी कौम ने अंजाम नहीं दिया। पहली कौम लूत की है जो रूए ज़मीन पे इग़लामबाज़ी की और बेहयाई का काम किया, यानी औरतों को छोड़कर, यानी मर्दों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आया करते थे और उनसे गलत संबंध बनाया करते थे, नाजायज था। लूत ने समझाया कि ऐ मेरी कौम समझ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कलमों के जरिए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को हलाल किया। तुम औरतों के पास आओ, बीबी बना लो, औरतों को बीबी बना लो, बेटियों को बीबी बना लो, उनके पास आओ। ये गलत काम मर्दों से न करो। इग़लामबाज़ी बद फैली। पहली कौम थी हज़रत लूत की, जिन्होंने दुनिया में अंजाम दिया था। मेरे भाइयों, जब कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, लूत को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने लूत को हुक्म दिया, ऐ लूत, तुम अपने कौम के लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं, रात रात लेकर निकल जाओ, अपने कुंबे कबीलों को लेकर निकल जाओ जो तेरे ऊपर ईमान लाए हैं। लूत अपनी कौम को लेकर निकल रहे हैं। सुबह का वक्त लूत अपनी कौम को लेकर निकल रहे हैं। मेरे भाइयों, उनकी बीबी पीछे रह गई। कोई ये कहता है कि उनकी बीबी उन लोगों में शामिल थी और उन लोगों का साथ दिया करती थी जो लोग मर्दों के पास आके गलत काम किया करते थे, उस चीज को जायज समझते थे। लूत निकल रहे अपने कौमों के साथ। अल्लाह ने अजाब भेजा तो किस शक्ल में भेजा, अल्लाह ने अजाब भेजा तो किस शक्ल में भेजा। अल्लाह कहता है वो अमतरना अलैहिम मतरा, हमने उन पर बारिश बरसाई, हमने उन पर बारिश बरसाई। और वो बारिश बरसाई किस चीज की? पानी की बारिश नहीं, अल्लाह ने बारिश बरसाई तो पत्थरों की। अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, अल्लाह ने बारिश बरसाई तो पत्थरों की बारिश बरसाई। बारिश बरसाई भी तो पत्थरों की बारिश बरसाई। लूत की कौम वो है जो दुनिया में इग़लामबाज़ी करने वाले पहली कौम थी, जिन्होंने दुनिया में इस काम को इजाद किया था। अल्लाह ने उस पर अज़ाब भेजा तो किस शक्ल में भेजा? उन पर पत्थरों की बारिश हुई। और कितना खतरनाक और दर्दनाक अज़ाब था उनके लिए। और बुरी बात उनके लिए है कि जब पत्थर उनके ऊपर गिरता था तो उस पत्थर पर नाम लिखा होता था कि ये फला पर गिरेगा, ये पत्थर फला पर गिरेगा, ये पत्थर फला पर गिरेगा। इसी तरह पत्थर पर नाम लिखा होता था और वो पत्थर उस आदमी के ऊपर गिरता था जिसका नाम लिखा होता था। मेरे भाइयों, दर्दनाक अज़ाब लूत की कौम ने भी देखा है। हम और आप समझते हैं कि ये जालिम बादशाह हमारे सामने है, हमें मुल्क से निकाल देगा, हमारे अंदर डर पैदा कर रहा है, हमें और आपको भयभीत होना पड़ रहा है, हमें और आपको खौफ से दो चार होना पड़ता है कि हमें कब मुल्क से निकाल दिया जाएगा। हमें जय श्री राम के नारे पढ़वाने पे मजबूर किए जा रहे हैं, हमें वंदे मातरम पढ़वाने पे मजबूर किए जा रहे हैं, हमें कुफरिया कलिमात बोलने पर मजबूर किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, वक्ती तौर पर ये परेशानियां हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। इस्लाम का नाम और निशाना कोई मिटा नहीं सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत लचकती है, ये उतना ही उभरेगा
जितना लोग दबाएंगे। मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो परेशान ना हो जाओ, गम ना करो, हैरान ना हो जाओ, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इस्लाम को मिटाने वाले आए, मिट गए, वो चले गए, लेकिन इस्लाम बाकी है, बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम का कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, हम और आप डर रहे हैं वक्ती तौर पर, हमें और आपको भी जल्दी मायूसी नहीं होनी चाहिए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम हो जाते कभी कभी। मेरे भाइयों, रब की अदालत पर हमें ये बात, रब की अदालत पर गवाही देनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह, इस दौर में हम गुजर रहे हैं, ऐ अल्लाह तुझसे आखिरी ख्वाहिश है जब तक जिंदा हम रहे, ईमान पर जिंदा रहे, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अल्लाह पर हम यही उम्मीद रखेंगे, यही भरोसा अल्लाह पर है, जब तक अल्लाह हमें जिंदा रखे ईमान पर, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, हर मुशरिक को दीन सिखाना ये तो आसान है, लेकिन हर पत्थर से कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, पत्थर से कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मेरे भाइयों, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे पास, हमारे सामने जब कोई अजाब आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हम समझे कि हम पर अल्लाह का अजाब है। अगर ये अल्लाह का हम पर अजाब नहीं है, तो हम ये समझे कि अल्लाह हमें आजमाइश में डाल रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है कि हम उस इम्तिहान में कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं। हम जानते नहीं करते, सुनिए सुनिए, बंगला मुकारी से करवाइए, हम खत्म कर रहे हैं, बुलाइए, कुछ भी हमसे नहीं होगा, चंदा करते ही रहिए, हमसे होगा भी। सुनिए, बंगला मुकारी को बुलाइए, इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज की तकरीर का खुलासा ये है कि जब हम पर कोई अजाब आए तो हम ये समझे कि ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। हमने रुए जमीन पे पाप किया है, हमने रुए जमीन पे गलतियां की है, हमने रुए जमीन पर लोगों पर जुल्म किया है, जिसके बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजाब दे रहा है। अगर हमारा कोई कसूर रहे, हमसे कोई गलती हुई भी नहीं, फिर भी हम पर मुसीबतें आती है, तो हम समझे कि ये अल्लाह की तरफ से हम पर आजमाइश है, अल्लाह हमें इम्तिहान में डाल रहा है। वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समारात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है, हुए जमीन पे हम इंसानों को कभी भूख से आजमाएंगे, कभी उनकी जाने लेकर आजमाएंगे, कभी उनके फलों में कमियां करके आजमाएंगे, कभी हम उनको डर दिखाकर आजमाएंगे, लेकिन ऐ सब्र करने वालों, तुम्हारे लिए बशारत है, व बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है जन्नत की, सब्र करने वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब्र पहली मर्तबा है, रास्ते में हम आ रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, हमारा काम ये है कि हम उस पत्थर को हटा दे। हम रास्ते में आ रहे हैं, चल रहे हैं, देख नहीं पाए, अचानक हम उस पत्थर से टकरा गए हैं, हम किसी को गाली ना देके इन्ना लिल्लाह पढ़े, हमसे कोई हमारी औलाद छीन ली जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ले लेता है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह उसको ले लेता है, उस पर हमें नाराज नहीं होना है, उस पर हमें गरिबान नहीं फाड़ना है। अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये आजमाइश है, अल्लाह तुम्हारी अमानत तुमसे ले रहा है, इसमें तुम्हें परेशान नहीं होना है। वो हम में से नहीं है, हमारी जमात में वो लोग नहीं है जो अपने गरीबान फाड़े, अपने रुखसार पीटे और ज़माना जाहिलियत की तरह किसी को पुकार की तरह पुकारे, ढोल बजाए, तमाशा करे, नोहा करे, मातम करे। इस्लाम में जायज नहीं है। अल्लाह हमारी जानें लेकर आता है। अल्लाह तो वादा दे रखा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। कहे लोगों हमने तुमसे तुम्हारे मालों को खरीद लिया, तुम्हारी जानों को खरीद लिया, इस वजह से इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत दे रखे हैं। इसके बदौलत अल्लाह हमें जन्नत दे रखी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকুমুল্লাহু খায়র ওয়া হাসানাল জাযা। এতক্ষণ ধরে আমরা সকলেই বক্তব্য শুনছিলাম উর্দু ভাষায়, যে পৃথিবীর বুকে যত রকমের ফাসাদ হয়, যত রকমের জুলুম হয়, প্রতিটি জিনিস মানুষের কর্মের ফলে হয়। মানুষ যেরকম আচরণ দেখায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ফল, কিছু ফল পৃথিবীর বুকেই দেখিয়ে দেন। এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য প্রদান করবেন ফজিলতুল শেখ আখতার হোসেন ইসলাহি সাহেব। খুব শীঘ্রই আমাদের সামনে বক্তব্য প্রদান করবেন ফজিলতুল শেখ আখতার হোসেন ইসলাহি সাহেব। আমার একজন নানা হযরত আলী সাহেব 500 টাকা নগদ এবং 500 টাকা বাকি এই মসজিদের উদ্দেশ্যে দান করলেন। ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ من شرور ومن